સમગ્ર દેશ વિદેશમાં એસઆરસી સંસ્થાનું નામ માનભેર લેવાય છે। આ સંસ્થાની ચૂંટણી યોજવાને આડે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે। બીજી તરફ આ સંસ્થામાં અમુક વહીવટ કરનારાઓ સામે ગેરરીતિના આક્ષેપો ઉઠી રહ્યા છે। ગાંધીધામ સંકુલના જાગૃત નાગરિક ઓમ નાવાણી દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું। આ પ્રેસ વાર્તામાં સંસ્થામાં અમુક તત્વોની બની ગયેલી સિન્ડિકેટ દ્વારા 200 થી 250 કરોડની રકમના કૌભાંડને અંજામ અપાયો હોવાની વિગતો અપાઈ હતી। ઓમ નાવાણીએ આ બાબતોને જાગૃત શેરહોલ્ડર્સ સુધી લઈ જવા અને પહોંચાડવાને માટે આહવાન કર્યું હતું। પ્રેસ કોન્ફરન્સના પ્રારંભે ઓમપ્રકાશ નાવાણીએ આયોજનનો ઉદ્દેશ્ય સમજાવ્યો હતો। કઈ રીતે અને કોની સંડોવણીથી વિવિધ પ્રકારના કૌભાંડોને અંજામ અપાયો છે તેની વિગતો આપી હતી। જે ભોગગ્રસ્તોની સાથે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે તે પૈકીના અમુકને ઝૂમ મીટિંગના માધ્યમથી હાજર રહ્યા હતા અને તેઓની સાથે થયેલા આ કૌભાંડ અંગે આપવીતી ટૂંકમાં વર્ણવી હતી। એસઆરસીના યુવા ડાયરેક્ટર નિલેશ પંડ્યા પણ આ પીસીમાં હાજર રહ્યા હતા। પાછલા 14 માસથી તેઓ દ્વારા પણ શેરહોલ્ડરના વિશાળ હિતમાં આ મહાન સંસ્થામાં કરેલી આંખ ઉગાડતી રજૂઆતો બાબતે વાત કરી હતી તથા આ સંસ્થામાં અમુક બની બેઠેલાઓ દ્વારા 1948માં કે જ્યારે કોમ્પ્યુટર ભારતમાં પણ નહોતા આવ્યા તે સમયે કોમ્પ્યુટરાઇઝ બોગસ શેર સર્ટિફિકેટ બનાવેલ છે તે અંગેનો બોલતો પુરાવો પણ રજૂ કર્યો હતો। આ પ્રેસના અંતે આયોજક ઓમ નાવાણીએ જણાવ્યું હતું કે એસઆરસીના કુલ 7164 શેર હોલ્ડર છે તેની શેર હોલ્ડિંગ 10,400 આસપાસની છે। તેમણે ગત 2 વર્ષમાં જે જોયું છે કે કૌભાંડ આચરી મુંબઈ હાઈકોર્ટથી સક્સેશન સર્ટિફિકેટ બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે મેળવાઈ રહ્યા છે। અંદાજિત 200 સક્સેશન સર્ટિફિકેટ તથા લેટર ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન અલગ નામોથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા છે જે સાચા શેર હોલ્ડરના વારસદાર જ નથી। જેમાં મુંબઈનો જતીન જોશી માસ્ટર માઇન્ડ છે। તેણે ગત 25 વર્ષોમાં કૌભાંડ ચલાવ્યું છે। એસઆરસીના ડાયરેક્ટર અને મેનેજમેન્ટને આ વાતની ખબર છે। હાઈકોર્ટના ઓર્ડરમાં જાહેર થયું છે કે તે બોગસ સક્સેશન સર્ટિફિકેટ છે છતાં પણ એસઆરસી આ બાબતે કોઈ જ પગલાં લેતી નથી। ગત 9મી ડિસેમ્બરના રોજ પોલીસમાં એક ફરિયાદ અરજી આપી છે જેમાં જતીન જોશી અને મનીષ જોશીની સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે। આ પૂરા કૌભાંડમાં ગાંધીધામના રહેવાસી ધર્મેશ દોશીની પણ સંડોવણી છે। 80% પ્રોપર્ટી તેના પરિવાર અથવા વ્યવસાયિક રોકાણકારો પાસે છે। આજની તારીખમાં 18 જેટલા ખોટા સક્સેશન સર્ટિફિકેટ ધર્મેશ દોશીના પરિવારજનોના નામે છે। શ્રી નાવાણીએ એસઆરસીને આ બાબતે વિનંતી કરી છે કે આ તમામને ફ્રીઝ કરી દો જેથી આગળ કોઈને તેઓ વેચે તો કોઈ સમસ્યાઓ ન થાય। આ પ્રકરણોમાં એસઆરસીના ડાયરેક્ટર સુરેશ નિહલાણીનું પણ સીધી જ સંડોવણી રહેલી હોવાનું ઓમ નાવાણીએ જણાવ્યું છે। પરિવારની ઓળખના પ્રમાણપત્રો તેઓએ જ એસઆરસી વતીથી આપેલા છે। આ કેસની ચોક્કસ તપાસ થવી જોઈએ અને જે શેર હોલ્ડરને અન્યાય થયો છે તેઓને ન્યાય મળે તેવી માંગણી કરી છે। તેઓએ વધુમાં કહ્યું છે કે જે સાચા વારસદારો છે સાચા શેર હોલ્ડર છે તેઓની પાસે ઓરિજિનલ શેર સર્ટિફિકેટ પડ્યા છે। એસઆરસીના મેનેજમેન્ટને બોગસ દસ્તાવેજથી બનેલા ખોટા શેર સર્ટિફિકેટ મળ્યા અને તેઓની કમિટીએ તેને એપ્રુવલ પણ આપી દીધા છે। તેઓએ દાખલારૂપ વાત કરી કે લીલા વાધવાની શેર હોલ્ડર ન હતા। તેમની માતા અને ભાઈ શેરહોલ્ડર હતા જે કાઉન્ટર ફોલિયો છે। તેઓના રેકોર્ડમાં છે। સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ સંસ્થાન મેનેજમેન્ટ જતીન જોશી સહિતનાઓનું એક મોટું કૌભાંડ છે। કદાચ 200 થી 250 કરોડનું કૌભાંડ છે જેની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવે અને જેઓની આ કેસમાં સંડોવણી ખુલે તે બધાની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગણી શ્રી ઓમ નાવાણીએ કરી હતી। मैं उसकी वारिस हूं, मेरे नाम करो। वो कह रहे आप कोर्ट में जाके प्रूव करो ये विल झूठी है। शी हैज इन्फॉर्म कि मेरी बहन ने कोई विल दी नहीं है। जतिन जोशी ने एक फ्रॉडुलेंट विल बनाई है। गांधीधाम कोर्ट में 2 विल जमा हो गई है और ये लीगल हेयर जो इसकी है बहन 92 इयर्स की प्रेम लालवानी ने उनको चिट्ठी लिखी है, पर्सनल चिट्ठी, नॉट एसआरसी, एज ए प्रेम लालवानी। ये प्रॉपर्टी आपने ओम नावानी को बेची है कि नहीं बेची है? वो कह रही आप ट्रांसमिशन मेरे नाम करो। TBX 22 में कब्जा हो गया है, किसी ने एनक्रोच कर दिया है। सुरेश नारायणी ने ब्राइब लेके उस प्रॉपर्टी को आज तक ट्रांसफर नहीं करने दे रहे। अभी एक ही लीगल ईयर बची है। शी इज 92 इयर्स ओल्ड। 1 साल से उसका मैटर पेंडिंग है, वो उसको अपना जस्टिस नहीं दे रहे हैं। बेटी अपनी बहन की गुजर जाने के बाद शी इज क्लेमिंग हर राइट। TBX 22 ये वन ऑफ द लीगल एयर है, भयंदर बॉम्बे में रहते हैं। अभी कनाडा में रात है, नहीं तो मैं उनसे हकीकत आपको सुनाता। उनको प्रेम लालवानी ने पर्सनल चिट्ठी लिखी कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, आपने ओम नावानी को ये प्रॉपर्टी बेची है कि नहीं? जो सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट। आप अपना बताइए भाटिया साहब। सर जी मैं आपसे चाहता हूं, आपका नाम क्या है सर जी? हेलो
आपका नाम क्या है सर जी? ओम प्रकाश पी नवानी। अच्छा, हाँ, सॉरी मैं आपको मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ मैं करके। हाँ, आई एम ओम नवानी। बहुत हेल्प किया है आपने, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस का डायरेक्ट एसआरसी में करवाया आपने मेरे को तो। हाँ, अपने नाम पे तो कुछ लिया भी नहीं आपने तो। सुनो सच्चाई, उनको है कि मैं ये प्रॉपर्टी का मालिक हूं और मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। माय नेम इज जितेंद्र चावड़ा और मैं गोंदिया में रहता था से मतलब 2015 में। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे ग्रैंडफादर है, उनका एक शेयर था और फिर मैंने ये तपास मतलब चालू किया कि भाई ये कहाँ से कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। तो सर मेरे ग्रैंडफादर के नाम का शेयर था जो कि उन्होंने मतलब 69 में ऑफ हो गए थे और वो भी मैंने जब तपास किया 2015 में तो मुझे मालूम पड़ा कि ये 1990 में बेच दिया गया है और मेरे फादर ने ये 83 में अपना नाम से ट्रांसफर करने के लिए दिया था, उसके साथ में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, सब बाकी डॉक्यूमेंट हटा दिए और वो जाके बॉम्बे में विले पार्ले, जबकि हम कभी उधर गए नहीं थे आज तक, और वहाँ पे का एड्रेस दिखा के उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया। और अभी हमें मतलब 2015 से ये केस चालू है और वहाँ से कोई भी मतलब हमको एक भी लेटर वगैरह कुछ भी मतलब वो नहीं कर रहे हैं। खमरा गांव से अंजार के बाजू खमरा है, ये वहां से बिलोंग करते हैं। जब ये इंक्वायरी करने आए 2015 में कि मेरे पास फाइल पड़ा है मेरे फादर का, बोले आपके दादाजी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी है, आपके दादाजी ने 1990 में शेयर ट्रांसफर कर चुके हैं। उसका एक डेटा मेरे को दिया है, उसमें से इन लोग ने केस नंबर उड़ा दिया। तो मैंने इनको मेल पे ऐसा बोला कि आप मेरे को डेटा दे रहे हो, पार्टीज के नाम दे रहे हो, तो मेरे को केस नंबर बॉम्बे के दो तो मैं उसके डॉक्यूमेंट निकालूं। तो ये लोग आज तक वो मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। रिसेंटली उसी 2017 से 2024 में 190 केस बॉम्बे से सक्सेशन होके आए हैं। I am sure more than 90% are the fraud succession taken by some of the guys from Bombay, और वो सारे के सारे डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉड है, उसके अंदर एसआरसी के शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉड है। मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि बॉम्बे कोर्ट के अंदर जितने सक्सेशन आप डाल रहे हो, मैं आपको एक एविडेंस भी दिखा देता हूं। यस ये शेयर सर्टिफिकेट है एसआरसी का। ये रूपाली राज के फैमिली का कंप्यूटराइज्ड। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या इन लोग ने फॉर्जरी की है। ये शेयर सर्टिफिकेट इशू हुए 1949 से लेके 1952 तक एसआरसी ने, जबकि राजीव गांधी पहला मास्टर कंप्यूटर परम करके नाम था कंप्यूटर को, उसको यूएस लेने 1958 में गए हैं। तो एसआरसी ये कंप्यूटराइज शेयर सर्टिफिकेट बना रहा था। अगर राजीव गांधी को पता होता तो वो अमेरिका कंप्यूटर लेने नहीं जाते, वो एसआरसी ऑफिस में आ जाते। इन लोग ने गलती ये की है कि हाथ से लिखे हुए शेयर सर्टिफिकेट को कंप्यूटराइज किसी और के नाम के बना के उसके जेरोक्स के ऊपर नखवी के थप्पे मार के डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिखा के उसके सक्सेशन निकाले हैं। जबकि ये जिस साल का ये सर्टिफिकेट है 1949 का, तब इंडिया के अंदर कंप्यूटर ही नहीं थे, तो प्रिंटर आया कहां से। એઝ એ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર મેં જયારે કેગ ઓડિટનો રિપોર્ટ મારી કમ્પ્લેનના લીધે આ ઓડિટ થયું છે, એ ઓડિટનો રિપોર્ટ જયારે નંદી શુક્લા સાહેબે એસઆરસી ને મોકલ્યો છે કે તમે આના ઉપર કમેન્ટ કરો, તો મેં એની કોપી માંગી તો મારા બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર ને મારા ચેરમેને મને કોપી નથી આપી। એના ઉપર મેં એ લોકોની ફર્ધર કમ્પ્લેન્સ કરી છે કે હું કમ્પ્લેનન્ટ છું, મારી કમ્પ્લેનના લીધે ઓડિટ થયું છે અને તમે મને કેગ ઓડિટનો રિપોર્ટ નથી આપતા, અને જેના ઉપર ફરિયાદ છે, જેની બધી વિગત છે એ કેગ ઓડિટમાં, એ લોકો એ કેગ ઓડિટનો રિપોર્ટ લઈને વકીલો કને દોડે છે। ऑल द डायरेक्टर्स, डेप्यूटी चेयरमैन, डीवाईएसपी, डीएसपी, कल रात को सबको पर्सनली फोन किया है कि ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रेस मीट एंड जूम मीट, प्लीज पार्टिसिपेट। पर आप प्रेस वाले आए, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक्स टू नीलेश, ही हैज पार्टिसिपेटेड। मैं
ये जो स्कैम है 200 करोड़ नहीं शायद 300 करोड़ का स्कैम होगा सर। शेयर होल्डर्स बेचारे दूर दूर गांव में रहते हैं, एसआरसी से डे टू डे करस्पॉन्डेंस करते हैं, दे आर नॉट रिप्लाइंग। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ब्लैक एंड व्हाइट, 21 फ्रॉडुलेंट शेयर्स। इन्होंने खुद कंप्लेंट्स की है कि फ्रॉड कंपनी में हो रहा है, लेकिन इसका जवाब आई होप मिस्टर नीलेश इसका जवाब आपको नहीं मिला होगा ब्रदर। ओम भाई, मैंने जितनी कंप्लेंट्स की, आफ्टर माय सेवरल कंप्लेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मेल आया केपीटी में दीनदयाल पोर्ट के अपने डेप्यूटी चेयरमैन नंदी शुक्ला साहब को टू डू कैग ऑडिट इमीडिएट इफेक्ट से। वो कैग ऑडिट 3 महीने चला। वो कैग ऑडिट के अंदर सारे फ्रॉडुलेंट का सारा डेटा आ चुका है ऑलरेडी। वो कैग ऑडिट का रिपोर्ट सेंट्रल एजेंसीज को जा चुका है। दे आर स्क्रूटिनाइजिंग द कैग ऑडिट रिसेंटली। उसके बाद हमारे जो रिसेंटली एक्सपायर्ड हुए डायरेक्टर राजा भाई वॉज द सीनियर डायरेक्टर। हम दोनों ने 22/6 और 22/7 की बोर्ड मीटिंग में काफी एग्रेसिव वे में इनसे सवाल पूछे थे मीटिंग में, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। इसमें इन लोग ने एग्री किया कि जितने भी फ्रॉड हुए हैं उसको एक स्क्रूटिनाइज करेंगे, एक कमिटी बनाएंगे, वो कमिटी इसको स्क्रूटिनाइज करेगी और उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। बावजूद 6 महीने होने के बाद भी आज तक वो कमिटी फॉर्म ये लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने सेवरल मेल्स मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन को बोलता हूं, हमारी चेयरमैन बिल्कुल साइलेंट है। वो मेरे व्हाट्सएप कॉल भी नहीं उठाती है, व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं देती है, एंड ही इज नेवर कम टू गांधीधाम इन फ्रॉम लास्ट 3 years। और वो हमारी कंपनी चला रही है एज ए चेयरमैन। बोर्ड में ऐसा मेल करते हैं कि मैं दुबई जा रही हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बोर्ड के सारे रेजोल्यूशन वो साइन कर रही है। आप समझ सकते हो कि कितना सारा फ्रॉड इन लोग ने मिलके जुल के किया है। मैं किसी को भी किसी भी हाल में छोड़ने में नहीं जाने वाला हूं। जितना हो सकेगा, जितना जल्दी हो सकेगा, उनको सबको सरकारी रोटी खिलाऊंगा। आप लिख के रखो। ये शायद लड़ाई और 6 महीना 12 महीने मेरे को खींचनी पड़ेगी। उनके पास पैसा है, पावर है, तो दे थिंक दैट दे कैन परचेज द जुडिशरी। ऐसा कुछ भी होगा नहीं। रिसेंटली एक पूरा का पूरा ऑडिट के बाद इन लोग ने कमिटी बनाने की बात की थी, तो मैंने बोला मेरे को डेटा तो दो कि बॉम्बे कोर्ट में से कितने सक्सेशन निकले हैं। उनका सपोर्ट लेके उनके पास से ये फ्रॉडुलेंटली पूरा करवाया, सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया हाई कोर्ट से, और पूरा प्रॉपर्टी हमारा सेल करवा दिया। और ऐसे उन्होंने बताया कि ये मेरी चाची भी उनके साथ सहमत थी, लेकिन एक्चुअली मेरी चाची को पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। उनके साथ भी फ्रॉड किया गया। उनसे झूठ बोला गया कि ये शेयर आपका ही बेच रहे हैं आप सिर्फ, और उनको पैसे भी एकदम नॉमिनल पैसे दिए गए उनको, और फुल प्रॉपर्टी उनका हमारा पूरा उन लोग ने ट्रांसफर करवा लिया। आई विल एक्सप्लेन रूपाली, जस्ट मिनट। राज फैमिली के 9 बच्चे थे, 9 चिल्ड्रंस। उनकी वाइफ और उनकी मदर, दे वर एक्चुअली 11 लीगल ईयर्स। कोविड में धर्मेश दोषी और जतिन जोशी, जो विडो है, चंद्रकला राज, शी 78 ईयर्स विडो, उसके पास ये गए कि आपके फैमिली की प्रॉपर्टी है, आपके हस्बैंड जयंत राज की डेथ हो गई है, हम कोर्ट में एक सक्सेशन अप्लाई कर रहे हैं वारसात आपके फेवर में। उन्होंने कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स दिए उनमें ऐसे दिखाया अर्जुन राज को कोई औलाद ही नहीं थी एक्सेप्ट जयंत राज। 9 के 9 लीगल ईयर में से 8 लीगल ईयर उन्होंने छुपा दिए। इन्होंने कोर्ट में दिखाया कि राधी भाई का कोई इश्यू नहीं है, जयंत राज
अकेले वारिस थे, प्लीज कीप साइलेंस, आई रिक्वेस्ट यू। और उन्होंने ये फ्रॉडुलेंट सक्सेशन दिखाया। मानसी राज के फादर इज अ डॉक्टर, 92 में उनका डेथ हो गया था, तो उनकी वाइफ शी इज अ डॉक्टर हेमा, शी हैड रिटन लेटर, उन्होंने एसआरसी को एक लेटर लिखा था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मैं सर्वाइविंग लीगल एयर हूं, मेरी बेटी है और मेरा बेटा, वी आर 3 लीगल एयर्स। वो एसआरसी के डॉक्यूमेंट में है। मैंने करना को कहा आपने ये सक्सेशन को कैसे एंटरटेन किया। कोर्ट का हुक्म है जिसमें 11 वारिस दिखाए गए हैं, मिस्टर नियालानी की मेहरबानी से फाइल ही गुम कर दी गया है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बोलते फाइल हमारे पास ट्रेस नहीं है। तो मैं बोला ये शेयर 4 के नाम कैसे हुआ। लीना कहती है फाइल ट्रेसेबल नहीं है, 40 साल पुराना फाइल है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है। इनके पास 93 का लेटर पड़ा है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, हम उसके 3 वारिस हैं। वो लेटर को इग्नोर किया है कि प्रेम लालवानी और सुरेश न्यालानी का कि हमको हाईकोर्ट में बोला है कि अकेली वारिस है, उसका सर्टिफिकेट सुरेश न्यालानी दे रहा है कि अभी बाकी जो है लीगल है उसको साइड में रख दो, हाईकोर्ट को रिस्पेक्ट करके हमको इसके नाम कर देना है। 1 जून 22 मैं इनके फैमिली को इन्फॉर्म किया कि ये फ्रॉड हुआ है। 2022 में 1 जून को दमयंती इनकी जो रिलेटिव थी चेतना, शी इज ऑनलाइन। हेलो चेतना, आर यू ऑनलाइन? दमयंती आर्या ने एक लेटर लिखा दिलीप कर्ना को कि ये फ्रॉड हुआ है, प्लीज इस फाइल को आप प्रोसेस नहीं करना, पानी देना बेटा, इस फाइल को प्रोसेस नहीं करना, हाईकोर्ट की वैकेशन है, हम हाईकोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं। दिलीप कर्ना को मेल की गई है कि ये फ्रॉड हो रहा है, हम इसके 11 लीगल एयर हैं। उस लेटर को मैंने पुलिस स्टेशन में भी सबमिट किया है, आदिपुर पुलिस स्टेशन, कि दिस फ्रॉड हैज बीन कमिटेड इन स्पाइट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एविडेंस विद द एसआरसी। 3 महीना ये लोग शांत रख दिया कि मैटर एक्सपोज हो रहा है। अक्टूबर 22 को चंद्रकला के नाम पे इन्होंने प्लॉट अलॉट कर दिया 309 इन वार्ड 6 से। मैंने दिलीप को कहा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास एविडेंस है? कह रहा है डायरेक्टर्स ने कहा है आप मीटिंग में लेके आओ। जो इनकी लीगल टीम है उनसे ये अपने मनमानी ओपिनियन ले लेते हैं कि आप प्रोसेस करो, हाईकोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो। हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि इनके नाम पे सक्सेशन करो, क्योंकि हाईकोर्ट को सच्चाई मालूम नहीं थी। प्लॉट अलॉटमेंट का हाईकोर्ट का ऑर्डर ही नहीं था, इन्होंने प्लॉट अलॉट कर दिया 309 वार्ड 6A में। हाईकोर्ट का इनको स्टे आ गया। शेयर होल्डर्स जो आउट ऑफ गांधीधाम है उनको कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रेम लालवानी जी ने मना किया है कि किसी को कोई जवाब नहीं देना है। रूपाली, काइंडली, शी इज द लेडी रूपाली राज। इनके ग्रैंडफादर अर्जुन राज, ही इज फ्रॉम मुलुंद। उनकी प्रॉपर्टी, ही डाइड इन 56 में उनका देहांत हो गया। 58 में इनके परिवार ने, उनकी वाइफ राधीबाई, रूपाली के डैडी, इन सभी ने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बॉम्बे हाईकोर्ट से प्राप्त किया कि हमारे 4 वारिस हैं जो बच्चे अबव 18 थे। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त होने के बाद उनके नाम वो शेयर 4 जनों के नाम 58 में हो गया थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम बॉम्बे हाईकोर्ट। दैट इज इन द नॉलेज ऑफ एसआरसी कॉर्पोरेशन। एसआरसी ने अर्जुन राज का शेयर उनके 4 लीगल एयर के नाम पे लीगली ट्रांसफर किया। उसके बाद उनका एक बेटे की डेथ हो गई 92 में। मानसी राज उनकी बेटी है, डॉक्टर, शी इज इन यूएस। ऑलरेडी मिल गया उसका कॉपी, संदूक में पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज इन कस्टडी ऑफ हाई कोर्ट। यहां डायरेक्टर ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सभी जो ये ऑनलाइन आप जिनसे इंटरैक्ट करोगे, सभी लीगल एयर्स के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके कस्टडी में है। और यहां इन डायरेक्टरों ने फॉर्ज करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किए हैं। सर, आपके और लीगल एयर्स में कोई ऑनलाइन है सर? मिस्टर Rubin Malkani? I have 5 other legal heirs, my cousins. They can come online. Please, they are online. I don't know. Mir Chandani. I saw Mir Chandani. She's there. She must be there. Mrs. Mir Chandani.
Can you answer, please? Yes, I'm there. Please introduce yourself. ये लोग 8 लीगल ईयर्स हैं. They all are senior citizens. इनको मैंने लास्ट ईयर बताया कि आपकी प्रॉपर्टी का फ्रॉड हुआ है. SRC is very adamant. They are not admitting the fraud because directors की कमेटी इन्वॉल्व है. Please introduce yourself, Mirchandani ma'am. Please introduce yourself. Yeah, I'm Geeta Mirchandani. My husband Narinder Mirchandani is the nephew of Leela Tarachand Wadhwani, who is the original share certificate holder and who is no more. And this whole fraud has come to light to us thanks to Mr. Om Navani. And as Mr. Ruben Malkani has already explained in detail, we are following the legal process. So my request is that everyone should join hands and bring this to light so that something really, some action is taken against the fraudsters. Thank you. Thank you, Mrs. Mirchandani. SRC के कुल 7,164 शेयर होल्डर्स हैं. उनकी शेयर होल्डिंग है 10,400 के आसपास. मैंने लास्ट 2 साल में जो ऑब्जर्व किया है, फ्रॉडुलेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट बॉम्बे हाई कोर्ट से प्राप्त किए जा रहे हैं. करीब करीब 200 सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बॉम्बे हाई कोर्ट से अलग अलग नामों के प्राप्त किए गए हैं, जो शेयर होल्डर के वारिस नहीं है. ये पूरी फ्रॉडुलेंट स्कैम है जिसमें बॉम्बे का जतिन जोशी मास्टरमाइंड है. उसने लास्ट 25 सालों में ये फ्रॉडुलेंट स्कैम चलाया है. एसआरसी के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के नॉलेज में है. 2 साल से हम ये इनको नॉलेज में लाया है कि ये फ्रॉड है. 2/11/2023 को पहला कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये फ्रॉडुलेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट है. उसके बावजूद एसआरसी कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रही थी. 9/12/2024 को अपने आप को बचाव करने के लिए उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की है अगेंस्ट जतिन जोशी, मनीष जोशी और अन्य. इस पूरे फ्रॉड में धर्मेश दोषी गांधीधाम का जो रहवासी है, 80% प्रॉपर्टी उसके परिवार या उसके बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पास है. आज की तारीख में 18 फ्रॉडुलेंट वर्जिन शेयर्स धर्मेश दोषी के फैमिली के नाम पे हैं. एसआरसी को मैंने रिक्वेस्ट किया उन सबको फ्रीज करो ताकि आगे किसी को ये बेचेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होगी. थरो क्रिमिनल इंक्वायरी की जाए और सच्चाई जानी जाए. इसमें एसआरसी के डायरेक्टर्स डायरेक्टली सुरेश न्यालानी का योगदान है. उसने फैमिली सर्टिफिकेट, एड्रेसेस उसने प्रूफ दिए हैं कि यहां कार्रवाई की जाए और इन सबकी मिली भगत है. इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर थरो इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन शेयर होल्डर से इनजस्टिस हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए. ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लोगों के घर पड़े हैं. एसआरसी के मैनेजमेंट को ये फ्रॉडुलेंट सक्सेशन मिला, उसके बेस पे इन्होंने कमिटी में पास कर दिए हैं और इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स वेरीफाई भी नहीं किए हैं. लीला वाधवानी का एक मैं आपको इंसिडेंस दे रहा हूं. लीला वाधवानी शेयर होल्डर नहीं थी. उनकी मदर और उनका ब्रदर शेयर होल्डर था. जो काउंटर फोलियो है उनके रिकॉर्ड में है. जो कोर्ट का ऑर्डर निकला उसमें लीला वाधवानी दिखाया गया. अगर ये काउंटर फोलियो और ऑर्डर मैच करते तो फ्रॉड उनको उसी दिन पता चल जाता. लेकिन इन्होंने अपने रिकॉर्ड बिना वेरीफाई किए लीला वाधवानी का प्रोसेस किया. इस शो करता है कि ये मैनेजमेंट, मैनेजर्स, जतिन जोशी, ये बड़ा स्कैम है. मोर देन 200 करोड़ का स्कैम है. शायद 200 के 250 करोड़ का है. तो इसकी थरो क्रिमिनल इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन जिन ने फ्रॉडुलेंट क्लेम किया है उनके साथ क्रिमिनल एक्शन लिया जा चाहिए. પ્રેમ સોપરાજભાઈ લાલવાણી, છેલ્લા 30 વર્ષથી જે છે હું એસઆરસીમાં ડાયરેક્ટર છું. એટલું જ કે એમાં જે વ્યક્તિ સાથે ચોરી ઠગી થઈ હોય એ જો વ્યક્તિગત અમને ફરિયાદ કરશે તો એમાં અમે જે છે પોલીસ કેસ કરશું. અને એક કેસ અમારા પાસે આવ્યો તો અમે એનો કેસ આ લીવ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કર્યો છે. માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે એ વ્યક્તિ અમારા પાસે આવવો જોઈએ. એનો દલાલ, એનો ભાગીદાર કે બિઝનેસ પાર્ટનર નહીં જોઈએ અમને. કારણ કે જ્યારે પોલીસમાં કેસ કરશું તો
તો જેને અન્યાય થયો હોય એના પાસે જ્યારે એસ્ટિમેટ લેવા જશે તો એ વ્યક્તિ આપવાની છે, બીજા નથી આપવાની. એટલે જેમ વ્યક્તિગત તમને મળી એટલે અમે એક પોલીસ કેસ આદિપુરમાં દાખલ કર્યો છે. અને આજે પણ જે પણ વ્યક્તિગત અમારા પાસે આવશે અને ફરિયાદ કરશે તો અમે તાત્કાલિક જે છે દાખલ કરશું. એવો બોર્ડનો ઠરાવ છે, હું નથી કહેતો, બોર્ડનો ઠરાવ કર્યો છે હમણાં કે કોઈની પણ ફરિયાદ તમને આવે વ્યક્તિગત તો તમે પોલીસ ફરિયાદ કરો.